Good morning, everyone. Vinita this side. I hope you are fit and very fine. Welcome to my channel. So, after completing the reading portion from the poem, now we are going to start with the summary. So, let's move to the point. Yeah, see. So, how to tell wild animals? Stranger number one. If ever you should go by chance to jungles in the east, here the poet wants to question the readers about or against the wild beast found in the jungle. वो कहता है if you ever should go by chance to the jungle in the east कि ईस्ट के साइड कभी किसी जंगल में आपका जाना हो by chance he says that if by chance you happen to go to any forest in the east कि आपको कभी भी ईस्ट साइड के जंगल में जाने का मौका मिले you are likely to encounter a huge and terrible animal moving forward towards you. So you are likely to encounter सामना करना. आपका कई बार सामना हो जाएगा बहुत बड़े बड़े और भयानक एनिमल्स से जो आपकी तरफ बढ़ रहे होंगे and you will notice that it is brownish yellow in color और आप नोटिस करोगे कि वो ब्राउनिश येलो कलर का है जो भी वो कह रहा है कि आप जैसे ही ईस्ट के जंगल में कभी जाओगे तो आप देखोगे कि आपका सामना होगा एक बहुत बड़े और भयानक एनिमल के साथ और कुछ देर में आप नोटिस करोगे कि वो ब्राउनिश येलो कलर में है एंड इफ दैट बीस्ट अगर वो जानवर रोर्स लाउडली एट यू आपके ऊपर जोर से गुर्राता है एंड यू फील दैट यू आर गोइंग टू डाई ड्यू टू फियर और आपको लग रहा है कि आप इतना डर गए हो कि उस डर से आप मर जाओगे देन यू विल कम टू नो तो आपको पता चल जाएगा दैट इट इज द एशियन लायन वो एशियाई शेर है so in this stanza the poet wants to explain the feature of Asiai lion. So what are the features? Like first of all, hues and terrible. Second, it is in brownish and yellow in color. Third, it roars loudly. Yes, and last and the foremost point, कि if you feel like you are going to die due to fear, so you will come to know that it is the Asian lion. Okay, so I hope you are clear. Okay, stanza number two. Or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. So, what is the explanation in that? Because from NCRT we already learn a complete entire story and entire meaning of the letters or words. So here the poet says that it is very likely that while roaming in the forest, ये एक बहुत आम सी बात है ये ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी जंगल में घूम रहे होगे यू आर ग्रीटेड बाय अ वाइल्ड बीस्ट आप मिलोगे एक बहुत बड़े जंगली जानवर से द वाइल्ड एनिमल इज वेरी इम्प्रेसिव इन साइज जो वाइल्ड एनिमल होगा वो जो जंगली जानवर होगा वो साइज में इतना इम्प्रेसिव होगा एंड हिज मैजेस्टिक बॉडी इज कवर्ड विद और उसकी जो बॉडी है वो कवर होगी विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो हाइट येलो कलर की स्किन है और उसकी येलो कलर की स्किन को
ढका हुआ है ब्लैक स्ट्रिप्स. The poet questions that if the readers notice this beast and that if he eats them, कि कवि कहता है कि अगर जो मैं जिसको बता रहा हूँ अगर वो नोटिस करे ना उस बीस्ट को उस जानवर को and then if he eats them then this simple rule will teach them it is a Bengal tiger. उसको नोटिस कर रहे हैं कि वो खा जाएगा बिल्कुल. ठीक है तो आप समझ जाओगे कि वो कौन है. बंगाल टाइगर. वो वेट नहीं करेगा वो आपको खा जाएगा. ठीक है वो सामने वाले को खा जाएगा. नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 3. If strolling forth a beast you view, whose height with sports is peppered, as soon as he can leapt on you, and you will know it's the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. The poet here helps the readers to identify a leopard. यहाँ पर जो पोएट है वो रीडर को आइडेंटिफाई कराना चाहता है कि एक लेपर्ड है. He says that if you happen to walk in the forest, वो कहता है कि आप कभी अगर वॉक कर रहे हो you might encounter a beast with spots on his skin. तो आपका सामना होगा एक ऐसे जानवर से जिसके स्किन पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं धब्बे हैं. When this will beast will jump at you, अगर वो वाइल्ड जंगली जानवर आपके ऊपर जंप करके आए you will understand it is the leopard as he will keep jumping on you and will tear you apart. तो आप समझ जाओगे कि वो लेपर्ड है क्योंकि वो कूदता ही रहता है एंड विल टीयर यू और आपको फाड़ देगा अलग कर देगा. Moreover, it will be of no use then to shout or cry with pain because he will continue pouncing on you. और वहां पर कोई फायदा नहीं होगा चिल्लाने का रोने का पेन से क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपके ऊपर जंपिंग पाउंस करता रहेगा. सो बी केयरफुल एंड डोंट अलाउ इट टू लीप ऑन यू. सावधान रहना और कोशिश करना कि आप उनको उसको अलाउ ही ना करो आपके ऊपर जंप करने के लिए. आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू. Okay, good. Next, stanza number 4. If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have doubt any, I guess he will give you just more one cash. बहुत आसान सा है. अब देखो वहां पर हमें यहाँ पर अब हमें एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है. अभी तक हमने लायन को देखा, अभी तक हमने टाइगर को देखा, अभी हमने लेपर्ड को देखा है. नाउ इट्स टाइम टू आइडेंटिफाई बियर. द पोएट सेज दैट व्हाइल यू आर वॉकिंग इन योर यार्ड, जब आप आंगन में घूम रहे होगे, यू मे एनकाउंटर अ क्रीचर देयर. आपका सामना एक ऐसे प्राणी से होगा. when this creature hugs you very very tightly, वो आपको गले लगाएगा बहुत टाइटली. then believe that it is a bear. तो आप मान जाओगे कि वो बियर है. Bears are thought to be good wrestlers and can give a really tight hug. Bears जो है ना वो बहुत गुड रेसलर्स माने जाते हैं और वो बहुत टाइटली सबको हग कर सकते हैं. Although friendly hug is referred to as a bear hug, if a real bear hugs you, then it may not feel friendly at all. हाँ ठीक है. जैसे सपोज वी आर हैविंग टेडी बियर्स ना, टेडी बियर्स होते हैं ना सॉफ्ट टॉय,
उनको हग करते हैं हम, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। बट वो कह रहे हैं कि अगर रियल बियर आपको हग करता है तो ये फ्रेंडली नहीं होता। द बियर हग्स अ मैन टू किल हिम। बियर हग करता है किसी आदमी को उसको मारने के लिए। The poet further says that in case of any doubt, you will find that the bear will embrace you once again till death. The poet further says, अब कवि दोबारा से इस चीज को ऐड करते हुए कहता है कि अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप यू विल फाइंड दैट द बियर विल एम्ब्रेस यू अगेन टिल डेथ। वो आपको तब तक अ, बिल्कुल अच्छे से पकड़ कर जकड़ कर अपने पास गले लगा कर रखेगा जब तक कि वो आपको मार नहीं देता, क्योंकि वो खाता तो मरे हुए इंसान को ही है ना, तो पहले तो वो मारेगा ही। Danger number 5. Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena. Thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Okay, now the poet here says that a novice may be puzzled or confused and thus might be able to distinguish between the different wild animals. कि हो सकता है शायद यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो, लेकिन इस बात में डिफरेंस बताने के लिए वाइल्ड एनिमल्स का। Hence the poet helps to differentiate the crocodile from the hyena. अब यहाँ पर वो डिफरेंशिएट करना चाहता है क्रोकोडाइल को और हाइना को। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, हाइना लक्कड़बग्गा। He says that कि जो लक्कड़बग्गा है ना always laughs as it swallows its victim. वो हमेशा क्या करता है, हंसता रहता है जब वो जुगाली करता है कुछ भी खाते हुए, अपने किसी विक्टिम को चबाते हुए, तो वो लाफ हंसता है। A laughing hyena's voice resemble human's laughing sound. उसकी जो हंसने की आवाज है ना वो बिल्कुल इंसानों के हंसने की आवाज जैसी लगती है। A crocodile on the other hand, अगर हम दूसरी तरफ क्रोकोडाइल की बात करें, is said to shed tears while eating its prey. जब वो अपने शिकार को खाता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। The poet thus warns the readers to not wait for hyena to laugh or for a crocodile to weep. अब कवि कह रहे हैं रीडर्स को कि अब तुम वेट मत करना, ना हमें वेट करना है हाइना के हंसने का और ना वेट करना है हमें क्रोकोडाइल के रोने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हाइना हंसेगा तो वो आपको भाकर हंसेगा और क्रोकोडाइल रोएगा तो वो आपको भाकर ही रोएगा। ठीक है, so don't allow them. Next, stanza number 6. The true chameleon is small, a lizard sort of things. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. Here, the poet describes the chameleon in the stanza. वो बात कर रहा है गिरगिट की। He says a chameleon is a small garden lizard. वो उसके गार्डन में, छोटे से गार्डन में एक ऐसी छिपकली की तरह है। इट डजंट हैव ईयर्स और विंग्स, उसके कान नहीं है, उसके पंख नहीं है। द पोएट फर्दर सेज दैट इफ यू आर अनेबल टू सी अ थिंग ऑन द ट्री, अगर आपको कभी कोई चीज दिखाई ना दे ट्री पे, देन चांसेस आर दैट अ चमेलियन इज सिटिंग देयर, क्योंकि वो कलर चेंज कर लेती है। वो जिस भी ऑब्जेक्ट पे जहां पर भी होती है वो उसी की शेड में हो जाती है, इसलिए कई बार हमें उसके बारे में पता नहीं चलता कि वो है या नहीं है। बट इफ नथिंग इज देयर ऑन द ट्री, then chances are that a chameleon is sitting there only. It is an expert. It changes color as per its surroundings. वो एक्सपर्ट है कॉम्बिफ्लेज, अपने आप को बदलने में, हर सिचुएशन में अपने आप को चेंज करने में वो एक्सपर्ट है, क्योंकि वो हर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेती है।
देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू सी, इसीलिए उसको देखना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। This capacity of camouflage helps the lizard in saving it from the hunters. और उसके यही जो रंग बदलने की जो उसकी कैपेसिटी है ना, उसकी जो काबिलियत है रंग बदलने की, वो हमेशा से उसको हेल्प करती है इन सेविंग इट फ्रॉम हंटर्स, उसको हंटर से बचाने में। So now the main point, what is the conclusion of how to tell wild animals? मजा आया? समझ आया? Very good. So now, conclusion. This poem is beautifully introducing the wild animals in a very different way, analogous to the hidden human beings. वो क्वालिटीज जो इंसानों में कहीं ना कहीं छुपी हुई थी वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने की, आज हमें पोएट ने इस पोएम के थ्रू उन वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई, उनको इंट्रोड्यूस कराया। ओके, now we do have some NCRT questions. First of all, thinking about the poem, we do have some question like first, does dying really rhyme with lion? Can you say it in such a way that it does? उसमें क्या है कि क्या DYIN का lion राइमिंग वर्ड है, और क्या करोगे आप इसको कि ये कैसे कह सकते हो आप इस बात को? नो, डाइन डज नॉट राइम विद लायन, वो लायन का राइम नहीं है। इफ वी प्रोनाउंस द वर्ड लायन एज lying, then probably it would rhyme with the word dying. उसने कहा है कि अगर आप लायन को लाइंग पढ़ोगे तब हो सकता है शायद कि वो इसका राइमिंग वर्ड बन जाए, बट अदरवाइज in this chapter no rhyming word is related with dying. Okay, next. How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? How does the poet suggest? Poet ने क्या suggest किया? That you identify the lion and the tiger. कि आप कैसे पहचान करोगे एक lion की और एक tiger की? The poet suggests that if a large and tawny beast roams in the jungle in the east and roars towards us, कवि ने बोला कि अगर कोई बहुत बड़ा सा भयानक सा टेरिबल सा कोई जानवर जंगल में घूम रहा है ईस्ट साइड पे और वो गुर्रा रहा है, हाउ मेनी क्वालिटीज लाइक लार्ज, टेरिबल, ठीक है, एंड इफ in the east side of the jungle you went, you can see Asian lion. On the contrary, if a noble wild beast with black strips on a yellow coat roams about the jungle freely, अगर एक ऐसा जंगली जानवर जो येलो कोट में ब्लैक स्ट्रिप्स को पहने हुए ब्लैक धारियों के साथ अगर जंगल में रूम कर रहा है, घूम रहा है, सो इट मस्ट बी बंगाल टाइगर, तो वो बंगाल टाइगर है। Besides, the poet also mentioned that a lion usually roars loudly when it attacks its prey. तो poet जो है उसने mention किया कि lion हमेशा ऐसे गुर्राता है जब वो अपने शिकार पर अटैक करता है, while a tiger attacks its prey silently. जबकि जो टाइगर है अगर वो अपने शिकार पर हमला करता है या उसको शिकार करता है किसी का तो वो बिल्कुल साइलेंटली करता है, मतलब वो चुप करके जाता है, उसको अपने उसके होने से ही जो सामने वाला पर्सन है वो डर जाता है और फिर वो उसको झपट्टा मार के पकड़ता है, उसको मार देता है और उसको खा लेता है।
तो जो लायन है वो अटैक करने से पहले रोर लाउडली दहाड़ता है, लेकिन टाइगर बिल्कुल साइलेंटली अपना काम कर लेता है। Next, question number 3. Do you think the word leapt and leap in the third stanza are spelled correctly? The word leapt and leap are spelled incorrectly in the poem. जबकि ये incorrectly spelled है. The poet has spelled them in such a way to maintain the rhythm of the poem. अब कवि ने सिर्फ इनकी स्पेलिंग्स को ऐसे लिखा है सिर्फ अपने पोएम की रिदम को सेट करने के लिए, राइमिंग वर्ड्स को सेट करने के लिए, राइमिंग स्कीम बनाने के लिए। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड लीप्ड is leaped, L-E-A-P-T, and leap is leap, L-E-A-P. Leapt and leap is not there, leaped and leap. The poet has deliberately spelled them incorrectly to create an element of humor. Okay, तो जो poet है उसने जानबूझकर इन spellings को incorrect किया है to create an element, element create किया of humor हुआ होगा। उसने क्या किया है, इनके स्पेलिंग्स को इनकरेक्टली इसलिए लिखा है, ह्यूमर वैसे तो अफवाह होता है लेकिन यहाँ पर ये भी है कि थोड़ा सा एंजॉय या कुछ माहौल बनाने के लिए emphasizing the word leopard in every line, क्योंकि वो लेफर्ड को का जो वर्ड है हर लाइन में वो उसको थोड़ा सा वो करना चाहता था, emphasizing थोड़ा दबाव उस बात पर जोर देना चाहता था, इसलिए उसने स्पेलिंग्स को गलत लिखा, only for making the schemes properly. Do you know what is a bear hug? It's friendly and strong hug, such as bears are thought to give as they attack you again. Hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animal in your own language? Yes. A bear hug refers to bear's close and tight embrace with both hands as it attacks its victim. कि बियर हग का मतलब यह है कि बिल्कुल बियर के पास जाना, उसको टाइटली पकड़कर अपने दोनों हाथों से दबाना, अपने शिकार को पे अटैक करने का ये उसका तरीका होता है। अदर हैंड also have similar expressions such as hyena never laughs but its face looks like that. hyena कभी हंसती नहीं है, लक्कड़हारा कभी हंसता नहीं है, लक्कड़ बग्गा कभी हंसता नहीं है, ये तो उसका फेस है जो ऐसा दिखाई देता है। एंड क्रोकोडाइल नेवर वीप, मगरमच्छ कभी रोता नहीं है, बट दे ब्रस्ट इनटू टीयर्स व्हेन दे स्वेलो एंड फ्री द विक्टिम्स, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ओके, जब वो अपने किसी शिकार को, अपने विक्टिम को चबाता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओके, a novice might non plus. How would you write this correctly? What is the poet's incorrect line better in the poem? The line a novice might nonplus can be correctly written as a novice might be nonplussed. This is the complete sentence. However, the usage of incorrect line is in the syntax, is in the structure with the poem as it helps in the maintaining the rhyme scheme. Same अपने poem की rhyme scheme को बचाने के लिए, अपने बनाए रखने के लिए by using these incorrect word non plus it rhymes with thus. उसको non plus इसलिए रखा है जबकि वो non plused है क्योंकि वो thus से rhyme हो जाए. That's why only. Okay, next. Question number 6. Can you find other examples of poets taking liberties with language?
either in English or any on your language. Can you find examples of humorous uh, poems in your own language? Okay. Yes, there are several instances where poets take liberties with the language to create proper rhyme in the poem. Okay, so उसने बोला yes, where parents should take liberties. जहाँ पर जो poet है वो बताता है कि लिबर्टी विद द लैंग्वेज ऑफ क्रिएट प्रॉपर राइमिंग ऑफ द फॉर्म कि उसको एक फ्रीडम चाहिए थी लैंग्वेज में ताकि वो प्रॉपर राइमिंग जो है ना फॉर्म की वो बना सके क्योंकि अगर वो बाउंड हो जाता ना तो वो राइमिंग नहीं बना पाता सो दिस इज ऑफन रेफर टू एज पोइटिक लाइसेंस एक पोइटिक एक लिटरेरी डिवाइस है कि हमें फॉर्म को राइमिंग वर्ड्स देने ही देने हैं तो इसलिए वो फ्रीडम चाहता था लैंग्वेज में कि वो कोई भी वर्ड को कैसे भी यूज कर सके फॉर एग्जाम्पल द रेस्ट इज यूज ऑफन टू वर्ड बेस्ट देन द वर्ड टेन इज यूज राइमिंग वर्ड विद पेन उसको ऐसी राइमिंग वर्ड्स की जरूरत थी इसलिए उसने बहुत सारी जगह पर कहीं पर वर्ड्स गलत लिखा हुआ है कहीं पर सेंटेंसेस गलत है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 much of the humor in the poem arises from the way language is used although the idea are funny as well okay so much of the humor in the poem arises from okay उसने बोला है कि जो बहुत सारे ह्यूमर्स हैं ना वो उठते हैं द लैंग्वेज इज यूज जो मतलब इस लैंग्वेज को जो यूज किया गया है जिस तरीके से although the ideas are very funny as well if there are particular lines in the poem that you especially like share and these with the speak मतलब आपको कौन सी लाइन है जो आपको बहुत फनी लगी है या आपको उसका आइडिया पसंद आया है या आपको पर्टिकुलर लाइन आपको बहुत अच्छी लगी the poet has kept the language in the poem very simple and humorous कि उसने थोड़ा सा हंसाने की कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज रखी है some of the lines that appear funny in the poem are a noble wild beast greets you एक बहुत भयानक बहुत बड़ा सा जंगली जानवर आपको ग्रीट करेगा तो दैट्स अ वेरी फनी लाइन ना कि हाउ वो ग्रीट करेंगे कैसे वो तो मार ही देंगे खा ही जाएंगे तो खाना ग्रीट करना थोड़ा होता है although the sentence appears that the wild beast might greet you but it is quite funny and unlikely that a ferocious animal like a tiger could do that. I don't think. Yes, yeah. सो ये जो लाइन है ये सिर्फ लिबर्टी ली थी उन्होंने यूज करने के लिए कि वो वर्ड्स को यूज कर सकते हैं ताकि उनको अपनी जो फॉर्म है उसको फनी भी बनाना है और उसको प्रॉपर राइमिंग स्कीम जो लिटरेरी डिवाइस है उसका यूज भी करना है ओके इन द अदर कंटेस्ट द लाइन ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन वो सिर्फ कूदता जाएगा बार बार दैट इज ऑल्सो द वर्ड लेप इज यूज टू मेंटेन द राइम स्कीम द वर्ड लेपर्ड उन्होंने सिर्फ उसको राइमिंग को मेंटेन करने के लिए यूज किया है इज यूज टू क्रिएट ह्यूमर इन द फॉर्म और थोड़ा सा हंसी मजाक ऐड करने के लिए किया है ओके सो आई होप यू विल लाइक इट ओनली द पॉइंट पोएट वांट्स टू एक्सप्लेन दैट कि उसको लैंग्वेज में ना एक लिबर्टी की नीड थी ताकि वो खुलकर वर्ड्स को यूज कर सके अब जो वर्ड्स उसने यूज किए हैं वो कई बार स्पेलिंग में एरर्स हैं कई बार किसी सेंटेंस में एरर है तो ये मीन ये नहीं है कि वो बनाना ही उसने बनाई गलत है the meaning is that while we are discussing about literary devices in the poem okay so rhyming devices rhyming scheme is also very important part in that okay so here he or she can be used with a very liberty the words and the words are in the form of funny and humorous and he just want to create humors in the poem okay
So that is the scheme that is used for rhyming scheme. Okay, and the two lines are very good and very funny in that. Like, firstly, a noble wild beast greets you, and second one is which one? Yeah, this one. He will only lap and lap again. वो बार बार आप पर कूदता जाएगा. ठीक है. Okay, anything else? So here we do have some questions, so kindly learn it. And before learn them, we just try to explain it in such a way. Okay, thank you. Have a nice day.